Today we will discuss about, you can guess from this picture also, and it is about circulatory system. In this chapter we will also discuss about body fluid, heart and working of heart. Okay, so let us start. Every cells, tissues and organs in the body is impacted to a great extent by the circulatory system of the body. This system is the most complex system with the three main components of blood vessels and heart. Three main components of circulatory system are blood vessel and heart. Okay, the blood travels through entire body through the arteries and vein. You have to remember the point here. Artery carry oxygenated blood and vein carry deoxygenated blood. This is how circulation occurs in the body. The pattern through which circulation happens is called the circulatory pathway. This pathway can be classified into two types: open circulatory system and closed circulatory system. You can see in this picture open circulatory system found in grasshopper. It is clearly visible in phylum Arthropoda and Mollusca. Here the blood that is pumped by the heart goes through large vessel into the body cavity. यहाँ पे ब्लड वेसल से डायरेक्टली हार्ट में एंटर करता है ब्लड और ये बॉडी ऑर्गेनेल में पहुंचते हैं। ग्रास ऊपर में जैसे दिख रहा है, ओपन रहते हैं बोल के इसलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज लिटिल बिट एडवांटेजियस एज कम्पेयर टू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज हियर ब्लड वेसल्स आर एंटरिंग इनटू द हार्ट in a systemic pathway. Okay, it is found in Annelida and Arthropoda. Here blood is always circulated through closed blood vessel. ओपन नहीं है यहाँ पे, कैपिलरीज ब्लड वेसल पूरा डायरेक्टली हार्ट में कनेक्टेड होके हैं। दिख रहा है पिक्चर में, आर्थो आर्म का दिखाया हुआ है ये पिक्चर। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ब्लड फ्लोस कैन बी रेगुलेटेड विथ प्रिसीजन इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, then the body fluids are blood and lymph. We will details discuss about the topic in the next class, body fluid, blood and lymph, but you have to remember the point here. What are the body fluid? This is blood and lymph. Blood is colored due to the presence of RBC, hemoglobin. Okay, but lymph is colorless. Circulatory system in vertebrates, it is of following types: two chambered heart, three chambered heart and four chambered heart. You can see in this picture two chambered heart found in fishes, and through gill capillaries blood entering into the heart in a single circulation. सिंगल सर्कुलेशन होता है मीन्स हार्ट में एक बार ब्लड एंटर करता है, बट थ्री चैम्बर्ड एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट इज ऑफ डबल सर्कुलेशन. हियर auricle and ventricles are present and blood entering into the heart for two times, so it is called double circulation. Three chambered heart found in amphibians and reptiles except crocodile. क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सारे रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट रहता है, ठीक है. फोर चैम्बर्ड हार्ट फाउंड इन बर्ड्स, mammals. This is called double circulation. Then human circulatory system, it is a complicated process that work efficiently in order for the other systems to function smoothly. बॉडी के हर ऑर्गेनेल में हर टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचना, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से सप्लाई हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होना जरूरी रहता है, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है. ओके, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द फोर चैम्बर्ड हार्ट, द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, that is artery, vein and blood here. Okay, the human's blood travel through two types of pathway, the pulmonary circulation and the systemic circulation. Pulmonary circulation में क्या होता है? Here the blood without oxygen called deoxygenated blood travel from the right side of the heart to the lungs. In the lungs exchange of oxygen and carbon dioxide takes place and blood now become oxygenated. यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने के बाद जो डीऑक्सीजनेशन होने के लिए फिर से हार्ट में पहुँचता है, और राइट साइड की तरफ से जो ब्लू साइन में दिख रहा है ना, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड रहता है, इसलिए इसका कलर ब्लू दिखता है, ठीक है, और इसको पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं. बट सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन प्लस ब्लड, जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ मिल के आता है
उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स में सप्लाई के लिए पहुंचता है, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। हियर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज ब्लड विथ ऑक्सीजन, ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्लड, इसीलिए इसका कलर रेड दिखता है। हियर एट डिफरेंट ऑर्गन साइड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। गैसेस पहुंचते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनल्स में, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट लिबरेट होता है, बहुत सारे काम हैं इसका, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ गो बैक टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर ऑक्सीजनेशन के लिए हार्ट में एंटर करेंगे, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, इस तरह सर्कुलेशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, ओके। Then structure of heart. The human heart is the body circulatory pump that pumps blood to various organs in the body. It weighs around 280 to 340 gram in men and around 230 to 280 gram in women, okay. Heart is situated in the thoracic cavity and is slightly left of the body. लेफ्ट की तरफ से थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है और बीच में लंग्स के बीच में रहता है ये, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग्स हेल्प करता है ना ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन के लिए, वहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड होके जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, इसीलिए लॉन्ग्स मदद करता है इस प्रोसेस में, ठीक है। लॉन्ग्स के बीच रहता है हार्ट। इट इज़ एनक्लोज्ड इन ए फाइब्रस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। दिस प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड ऑल्सो एंकर्स इट इनसाइड द चेस्ट बिटवीन टू लॉन्ग्स। टू लॉन्ग्स के बीच रहने के लिए एक सैक प्रेजेंट रहता है, फाइब्रस सैक, एंड इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। Between the outer and inner pericardial layer, the pericardial fluid is present, which lubricates the heart. Lubricate करता है हार्ट, पंप करने के लिए, पंप होता रहता है हमेशा, इसलिए इसको मदद करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके। Human heart is of 4 chambers. The 2 chambers are called right atrium and the left atrium, and the 2 lower chambers are called right ventricle and left ventricle. जो ब्लू के तरफ दिख रहा है वो राइट ओरिकल और वेंट्रिकल है, ऊपर की तरफ जो है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो लेफ्ट एट्रियम, नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरह 4 चैम्बर, और बीच में जो व्हाइट छोटे छोटे लाइनिंग हैं वो भाल्व है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल टुगेदर may be called right heart. The left atrium and the left ventricle together form the left heart. Both the sides of the heart are separated by a muscular wall called as septum. सेपरेशन होता है किससे? सेप्टम से। एंड इवन द वेंट्रिकल एंड द ओरिकल आर सेपरेटेड बाय, वेंट्रिकल और आर्टरिया सेपरेट होते हैं मस्कुलर सेप्टम के तरफ से, ठीक है। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. The chambers of the heart are connected through a small opening in septa. These openings are guarded by valves. ब्लड जैसे एंटर करता है, फिर हार्ट में लेफ्ट की तरफ पहुंचता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर राइट की तरफ वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ऐसे जो बोल रहे हैं ये प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं और कुछ टाइम लिमिटेशन रहता है। उस टाइम लिमिट के अंदर ही इस चैम्बर में इतना टाइम ब्लड रहेगा, फिर उस चैम्बर में आएगा, फिर इस चैम्बर में, ऐसे 4 चैम्बर में ये पहुँचेंगे ब्लड, ठीक है। इसका टाइम लिमिट रहता है, इसको हम कार्डियक साइकिल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ valves प्रेजेंट. They are tricuspid valve, bicuspid valve, aortic valve and pulmonary valve. First we will discuss about tricuspid valve. You can see in this picture also, this is present in the right side of the heart, formed by 3 muscular flaps and is help in guiding the opening between right atrium and right ventricle. Bicuspid valve is, बाई मतलब 2 ऊपर एक नीचे, इस तरह से। इट गार्ड्स द ओपनिंग इन बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। एओर्टिक valve, इट कंट्रोल्स द ब्लड फ्लो आउट ऑफ द वेंट्रिकल एंड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एओर्टा एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज एओर्टिक valve, जो कि लेफ्ट की तरफ से रहते हैं। देन पुल्मोनरी valve में जो पिक्चर में दिख रहा है राइट की तरफ से, इट कंट्रोल्स ब्लड फ्लो आउट ऑफ द वेंट्रिकल एंड इज प्रेजेंट इन बिटवीन पुल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में रहता है। There are many blood vessels that go in and out of the heart through vein, arteries and capillaries form this network. Vein carry deoxygenated blood to right side of the heart and artery carry oxygenated blood away from the heart to different parts of the body. Blue में जो दिख रहा है वो vein है,
और रेड में जो दिख रहा है वो आर्टरी है, और बीच में जो छोटे छोटे वेन्स आर्टरीज प्रेजेंट रहते हैं उसको कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी मदद करते हैं बड़े वेन और आर्टरीज में मिलने के लिए, ठीक है। The longest artery that leaves the heart is called aorta. In between the veins and arteries, small tube-like vessels called the capillaries form a network. The cardiac muscle make the heart. हार्ट का जो मसल रहता है वो स्पेशलाइज्ड मसल में बना हुआ रहता है। ऐसे हाथ का पैर का जैसे हमारे मसल्स रहता है ना, इस तरह का मसल से वो बनाया हुआ नहीं रहता है। वो मसल को कार्डियक मसल बोलते हैं। वो मदर के ऊम से जब बच्चा रहता है उस टाइम से पंपिंग होता रहता है अप टिल डेथ होने तक। एक इंसान का 80 साल 90 साल 100 साल जितना भी इंसान जिंदा रहेगा उतना टाइम तक उसका पंपिंग चालू रहता है, चाहे वो कॉन्शियस माइंड में हो, अनकॉन्शियस माइंड में हो, स्लीपिंग मोड में हो, आप किसी कोई भी काम करो, जाने में अनजाने में अननोइंग में नोइंग में कैसे भी करो आप, उसका पंपिंग हमेशा चालू रहता है। जब तक चालू है तब तक जिंदा रहता है इंसान। इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड मसल में इसका बनाया हुआ रहता है, इसको कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। द वेंट्रिकुलर वॉल आर थिकर देन द आर्टेरियल वॉल। नीचे के तरफ से जो हार्ट का वॉल रहता है वो थोड़ा सा थिक रहता है एज कंपैरिजन टू द आर्टेरियल वॉल। द कार्डियक मसल हैव ए स्पेशल नोडल टिश्यू कॉल्ड द साइनो आर्टेरियल नोड, ऐसे नोड बोलते हैं इसको, एंड द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड, ओके। This is also there is also a bundle of nodal fibers called the AV bundles, atrioventricular bundle. There is also known as a AV bundle. This branch out into right and left bundles. The right and left bundle further branch into minute fibers called Purkinje fibers. यहाँ पे दिख रहा है जो येलो येलो साइन में छोटा छोटा ब्रांचिंग फाइबर्स का दिख रहा है उसको पर्किंजे फाइबर बोलते हैं। AV नोड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? राइट साइड दिख रहा है जो AV नोड प्रेजेंट रहता है। राइट बंडल ऑफ ब्रांच, लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच, SA नोड प्रेजेंट रहता है राइट साइड में ऊपर में, ठीक है। बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट रहता है through the ventricular musculature of the heart. These fibers along with the right and left bundle are known as bundle of His. ओके ये पिक्चर में दिख रहा है। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द नोडल मसल इज दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। बाहर के तरफ से कोई स्टिमुलेशन ना हो तो भी इसका एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जारी रहता है यहाँ पे हार्ट में। ब्लड एंटर करता है फिर आउट होता है, एंटर करता है आउट होता है, तो एक इम्पल्स क्रिएट करता है, इसलिए नोडल मसल्स प्रेजेंट रहता है इसके वजह से, ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट, द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट वर्क टुगेदर। लेफ्ट फ्लोज कंटिन्यूसली, ब्लड फ्लोज कंटिन्यूसली टू द हार्ट, लंग्स एंड द बॉडी। कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, इसमें कोई रेस्ट नहीं। रेस्ट आप बॉडी को देते हो लेकिन इंटरनल बॉडी ऑर्गेनल कोई रेस्ट नहीं। लंग्स हार्ट ये हमेशा फंक्शनिंग करते रहते हैं अपने अंदर अंदर, ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट, ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू 2 लार्ज वेन, 2 लार्ज वेन की तरफ से ब्लड एंटर करता है। एंड द वेन नेम एज इंफेरियर एंड सुपरियर वेना कावा। ये 2 वेन के से ब्लड एंटर करते हैं हार्ट में पहले, एम्प्टिंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। वेना कावा ब्लड जो ऊपर दिख रहा है फिगर में, as the atrium contracts, blood flow from right atrium into right ventricle through the open tricuspid valve. Tricuspid valve की तरफ से ये फिर नीचे आ जाते हैं। Then when the ventricle is full, the tricuspid valve shuts. Auricle से ventricle आ जाने के बाद tricuspid valve पास होके ये आते हैं। This prevents blood from flowing backward into the atria while the ventricle contracts. जब वेंट्रिकल में फुल हो जाते हैं, ऑरिकल फुल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर एक प्रेशर एक स्टिमुली क्रिएट होता है आर्टेरिया में, और फिर ब्लड वो भाल्व को एंटर करता है, ट्राइकस्पिड भाल्व को, और वेंट्रिकल में एंटर करता है। ये टाइम लिमिट टाइम पीरियड में होता है, कितने टाइम में कहाँ तक कहाँ पहुँचना है, ठीक है। फिर as the ventricle contracts, blood leaves the heart through the pulmonic valve into pulmonary artery. Pulmonary artery से ये
फिर लीव करेंगे वेंट्रिकल को, एंड द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड देन रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और पुल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे याद रखना है। ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, ओके, but all vein carry deoxygenated blood except pulmonary vein, okay, pulmonary vein carry oxygenated blood away from heart। हार्ट से लेफ्ट के तरफ से वेंट्रिकल जब फुल हो जाता है देन पुल्मोनरी वेन से वो बॉडी में यूटिलाइजेशन के लिए पहुंचते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, द पुल्मोनरी वेन empty oxygen rich blood from the lungs into the left atrium of the heart. As the atrium contracts, blood flow from left atrium into left ventricle through the open mitral valve और bicuspid valve, mitral valve, sorry यहाँ पे mitral valve और bicuspid valve, bicuspid valve के थ्रू पास होके फिर नीचे आ जाता है। When the ventricle is full, the mitral valve shuts. This prevents blood from flowing backward into the atrium while the ventricle contracts. As the ventricle contracts, blood leaves the heart through the aortic valve into the aorta and to the body. जब ऑरिकल से फुल हो जाता है, एक स्टिमुली क्रिएट होता है, उसके बाद बाइकस्पिड और मिट्रल भाल्व ओपन हो जाता है, देन वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर वेंट्रिकल से वो ओपन हो गया देन जाता है, ठीक है। Once blood travels through the pulmonic valve, it enters to the lungs. This is known as pulmonary circulation. Pulmonary circulation और systemic circulation ऊपर में देखे थे हम। From pulmonic valve, blood travels to the pulmonic artery to capillary vessels in the lungs. Here, oxygen travels from the small air sac in the lungs. Air sacs present रहते हैं lungs में, alveoli उसके थ्रू होता है, थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरीज इनटू द ब्लड। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, passes from blood into the air sacs. कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी व्हेन वी एक्सेल। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ऐसे एक्सेल कैसे होता है? नासाल चैम्बर के थ्रू, लंग्स की तरफ से, ठीक है। इट ट्रेवल्स बैक टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पुल्मोनरी वेन। व्हाट आर कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट? कोरोनरी आर्टरी क्या है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे एओर्टा प्रेजेंट दिख रहा है आपको फिगर में। लाइक ऑल ऑर्गन्स, आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट रिक्वायर्स ए सप्लाई ऑफ ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। हार्ट में आपको लग रहा होगा कि ब्लड हमेशा पहुंचता रहता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हर चीज़ हो रहा है, तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एंड फुल ऑफ ब्लड सप्लाई होगा, ऐसे नहीं होता है। वो तो ब्लड में, ब्लड बॉडी ऑर्गेनल्स में पहुंचने के लिए और बॉडी से फिर एक्सपायर करने के लिए वहाँ पे प्रोसेस होता है। बट हार्ट मसल में, कार्डियक मसल में कुछ आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है और ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज एंड दैट सप्लाई टू द हार्ट, ओके। यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है, राइट साइड में, इसीलिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट की तरफ जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट की तरफ जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ऑल्दो इट्स चैम्बर्स आर फुल ऑफ ब्लड, द हार्ट रिसीव्स नो नोरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड। ऐसे ब्लड से वो डायरेक्ट नोरिशमेंट नहीं ले पाता है। द हार्ट रिसीव्स इट्स ओन सप्लाई ऑफ ब्लड फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। Two major coronary artery branch off from the aorta near the point where the aorta and the left ventricle meet, and the name are right coronary artery and left coronary artery. The arteries and their branches supply all parts of the heart muscle with blood. ये दोनों आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी, दोनों सप्लाई करते हैं हार्ट के मसल्स में, ब्लड सप्लाई करते हैं, ओके। This is all about circulatory system and working of heart. In the next class, we will discuss about heartbeat and cardiac cycle and blood also. Okay. Thank you.